Assalamu alaikum students. I'm Humaira Tahir, your English teacher. Hope you are all well. Today we are going to start Unit 4 of your textbook. The topic of this unit is Hazrat Asma. In this lesson, we will learn about the life of Hazrat Asma. Hazrat Asma was a brave Muslim lady. She was the daughter of the close companion and the trusted friend of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziallah Ta'ala. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and sister of the beloved life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisha. She was the wife of Hazrat Zubair bin Awam, who was the cousin of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, and she was the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. So her lineage is so great. She was among the early few Muslims who embraced Islam, and they bore the hardships in the early period of the uh, spread of the Islam. And she rendered useful services in the cause of Islam, and she had given us the lessons of generosity, courage, bravery, and truthfulness. So in this lesson, we are going to learn about the few incidents about the life of Hazrat Asma Raziallah Ta'ala. Okay, now open your books at page 38. Are you ready? Open page 38, Hazrat Asma Raziallah Ta'ala Anhu. From the first page, we have to start para number 1. Keep the pencil in your hand so that you can write the meanings of the difficult words. The first paragraph is the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq. Close companion means Karibi Sati. Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziallah Ta'ala Anhu migrated means Hijrat Farmai. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत फरमाई फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD, मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी के साल में. नाउ वी कनेक्ट द सेंटेंस. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत फरमाई. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल, वेरियस ट्राइब्स मुख्तलिफ कबाइल, चीफ्स सरदार, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को came to know मालूम हुआ about the migration हिजरत के बारे में of the रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion और उनके करीबी साथी हजरत बकर सिद्दीक, they got furious, तो वो गजबनाक हो गए या शदीद गुस्से की हालत में आ गए. जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो वो गजबनाक हो गए. फ्यूरियस मीन्स गजबनाक होना. द चीफ्स वर डिटरमिन्ड मोर देन एवर, सरदार पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म हो गए. डिटरमिन्ड का मतलब पुरअज़्म हो गए. मोर देन एवर पहले से कहीं ज्यादा. टू फाइंड देम आउट के उन्हें ढूंढ निकाले. सरदार पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म हो गए कि उन्हें ढूंढ निकाले. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स एंड बाउंटीज, उन्होंने भारी इनामात और नजरानों की पेशकश की. फॉर देयर कैप्चर, उनकी गिरफ्तारी के लिए. डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा.
कैप्चर मीन्स गिरफ्तारी, बाउंटीज नजराने, रिवॉर्ड्स इनामात, ह्यूज भारी, ऑफर्ड पेशकश की। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स एंड बाउंटीज, उन्होंने भारी इनामात और नजरानों की पेशकश की उनकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर। अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट द क्वेश्चन, हु वर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू? मीन्स मुहाजिर कौन थे, हिजरत करने वाले कौन थे, और वो उन्होंने कहाँ हिजरत की? The answer you can find in the first paragraph. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq were the immigrants and they migrated from Makkah to Medina. Understand? Now come to the next paragraph. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq. इस सफ़र की तैयारी, प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र की तैयारी वॉज मेड की गई एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रेंडर्ड अ यूज़फुल सर्विसेज, हज़रत अस्मा ने मुफीद खिदमात पेश की इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में हज़रत अस्मा ने मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया, प्रिपेयर्ड तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक, उन्होंने खाना ऊँट की पुश्त पर बांधा, विद हर ओन बेल्ट, अपनी नताक के साथ। बेल्ट is a kind of cloth that Arabian women wrap around their waist. So here she used her own belt to tie the food with the camel back. As nothing else could be found, क्योंकि उन्हें इसके लिए कुछ और ना मिला। For this service, इस खिदमत के सिले में she was given the title of ज़ातुन नताकीन, इस खिदमत के सिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें ज़ातुन नताकीन का खिताब मिला। ज़ातुन नताकीन मीन्स दो बेल्टों वाली या दो नताब वाली। Now come to the next paragraph, third para. During the perilous journey, इस पुरखतर सफ़र के दौरान, during दौरान perilous खतरनाक सफ़र, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was very difficult for anyone, किसी भी शख्स के लिए ये इंतहाई मुश्किल था to supply food, कि वो खाना पहुँचाएं to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The situation was so delicate, सूरत हाल इतनी नाजुक थी। Situation सूरत हाल, delicate means नाजुक थी, that the slightest mistake, कि ज़रा सी गलती, could have endangered, खतरे में डाल सकती थी, endangered का मतलब खतरे में डाल सकती थी, the life of the रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि ज़रा सी गलती भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती थी। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq, और ये काम बखूबी सर अंजाम दिया हज़रत अस्मा ने, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। नाइसली अंडरटेकन, बखूबी सर अंजाम दिया। ग्रैंड टास्क, ये अजीम काम, ये एक अजीम काम हज़रत अस्मा ने बखूबी सर अंजाम दिया, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खुराक की थैली के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रग माउंटेन्स, ना हमवार पहाड़ों की तरफ खामोशी से खतरा मोल लेती। शी वुड क्वाइटली वेंचर, क्वाइटली मीन्स खामोशी से, वेंचर खतरा मोल लेना, टुवर्ड्स द रग माउंटेन्स, ना हमवार पहाड़ों की तरफ, इन विच ले द केव ऑफ थॉर, जहाँ पर गारे सौर वाक़ है। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स, वो ज़रा सी बातों का ख्याल रखती। माइन्यूट डिटेल्स, ज़रा सी बातों का ख्याल रखती। इन अकॉम्प्लिशिंग द टास्क, काम को मुकम्मल करने के लिए, काम को सरअंजाम देने के लिए वो ज़रा सी बातों का ख्याल रखती।
हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, उनके लिए ये सब कितना मुश्किल हुआ होगा। टू ट्रैवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, ये रात को पथरीले रास्ते से गुजरें। ट्रैवर्स का मतलब गुजरें, रॉकी पाथ पथरीले रास्ते पर, एट नाइट रात के वक्त। उनके लिए रात के वक्त पथरीले रास्ते से गुजरना कितना मुश्किल हुआ होगा। विद द कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, और डिटेक्टेड मीन्स देख लिए जाने के, कॉन्स्टेंट फियर मुसलसल खौफ के साथ, और देख लिए जाने के मुसलसल खौफ के साथ उनके लिए पथरीले रास्ते से रात के वक्त गुजरना कितना मुश्किल हुआ होगा। डिटेक्टेड मीन्स देख लिए जाने या पकड़ लिए जाने, कॉन्स्टेंट फियर मुसलसल खौफ के साथ। Understand? Now, up till now, we have completed first three paragraphs, and your homework is that you have to prepare these three paragraphs with the meanings of difficult words in Urdu. All right? Okay, get yourself prepared for tomorrow's test. Allah Hafiz.